mind's demand on the divine power to act always according to our crude surface notions of omniscience and omnipotence. For our mind clamors to be impressed at every turn by miraculous power and easy success and dazzling splendor. Otherwise, it cannot believe that here is the divine. The mother is dealing with the ignorance in the fields of the ignorance. She has descended there and is not all above. Partly she veils and partly she unveils her knowledge and her power, often holds them back from her instruments and personalities, and follows that she may transform them the way of the seeking mind, the way of the aspiring psychic, the way of the battling vital, the way of the imprisoned and suffering physical nature. There are conditions that have been laid down by a supreme will. There are many tangled knots that have to be loosened and cannot be cut abruptly asunder. The Asur and Rakshas hold this evolving earthly nature and have to be met and conquered on their own terms, in their own long conquered fief and province. The human in us has to be led and prepared to transcend its limits and is too weak and obscure to be lifted up suddenly to a form far beyond it. The divine consciousness and force are there and do at each moment the thing that is needed in the conditions of the labor. Take always the step that is decreed and shape in the midst of imperfection the perfection that is to come. But only when the supermind has descended in you can she deal directly as the supramental Shakti with supramental natures. If you follow your mind, it will not recognize the mother, even when she is manifest before you. Follow your soul and not your mind, your soul that answers to the truth, not your mind that leaps at appearances. Trust the divine power, and she will free the godlike elements in you and shape all into an expression of divine nature. ये 25 पेज है. अब इसको सेंटेंस बाय सेंटेंस, देविका जी ये सेंटेंस बाय सेंटेंस बताओ क्या है ये? पंकज में स्क्रीन अब ब्लैक हो गई है बीच में है। अभी अभी हुई है। आ रही है? स्क्रीन है बट बिल्कुल ब्लैक है, प्लेन ब्लैक। हाँ जी अब आ गई। हाँ, अवॉइड ऑल्सो, ये यहाँ से. Avoid also the error of the ignorant mind's demand on the divine power to act always according to our crude surface, to our crude surface notions of omniscience and omnipotence. तो ये है कि अवॉइड करनी है कौन सी एरर, जो हमारे इग्नोरेंट माइंड, जो हमारा माइंड जो है वो ये डिमांड
करता है कि भाई जो डिवाइन पावर वो हमारे मुताबिक चले, जो हमारी क्रूड सरफेस कॉन्शियसनेस है, दैट इज जो बाहरी सत्ता है हमारी, तो वो उसकी अपनी डिमांड्स है कि भाई भगवान इस तरह से काम करे या इस कंडीशंस में काम करे। तो इस एरर को हमें अवॉइड करना है, अपनी नहीं, इग्नोरेंट माइंड। यहाँ ये थोड़ी कह रहे हैं, ये कह अवॉइड रहे हैं, ऑल्सो। हाँ वो ठीक है, अवॉइड ऑल्सो the error of the ignorant mind's demand on the divine power to act always according to our crude surface notions किसके of omniscience and omnipotence, क्रूड सरफेस नोशंस ओमनीसियंस के, सर्वज्ञता के, एंड ओमनीपोटेंस सर्वशक्तिमत्ता के। इसलिए मैंने कहा अब जो बात आ रही है वो और भी भयंकर आ रही है, जो इतनी देर बात आई उससे ज्यादा भयंकर अब ये कंक्लूजन के अंदर बात आ रही है। क्या मैडम? हाँ। हाँ जी। तो ये कि जो हमारा इग्नोरेंट माइंड है, जो इग्नोरेंट माइंड जो बाहरी सत्ता है, बेसिकली वो इग्नोरेंट है। और वो ये इग्नोरेंट इसलिए क्योंकि वो क्या कहते हैं, वो डिवाइन पावर से कि भाई वो उसके मुताबिक, भगवान उसके मुताबिक चलेगा, भगवान को ये हम नहीं कह अपने रहे, मुताबिक चलाना चाहते हैं। और ये कह नहीं रहे, अच्छा। जो सेंटेंस कह रहा है स्ट्रिक्टली वो देखो पहले तो। हाँ जी, ये इंग्लिश एक में बड़ी तो, समस्या है। हैं? इंग्लिश में तो यही पता चल रहा है, मतलब इसमें हाँ, तो इंग्लिश से अवॉइड ही मैं ऑल। कह रहा हूँ, और तो मैं अलग से कहाँ से कहूंगा, जो हाँ जी। सेंटेंस है स्ट्रिक्टली उस सेंटेंस को पकड़ो। अदरवाइज क्या है कि ये इंप्रेशन कुछ हमारे देता है, और वो इंप्रेशन हमको उसका अर्थ लगता है, जबकि टेक्स्ट का ये अर्थ नहीं है। इग्नोरेंट माइंड का डिमांड क्या है? दैट। एरर है, हाँ ठीक है, हाँ जी। अकॉर्डिंग टू आवर कि- क्रूड सरफेस नोशंस ऑफ ओमनिसियंस एंड ओमनिपोटेंस। हम्म, वो ये डिमांड करता है भगवान से या भागवत शक्ति से कि हमारे जो सरफेस के नोशंस हैं क्रूड, किस संबंध में, ओमनिसियंस और ओमनिपोटेंस, उनके अकॉर्डिंग चले, उनके अकॉर्डिंग व्यवहार करे। ये है सेंटेंस, यही तो कह रहे हैं। हाँ जी। हाँ जी, बिल्कुल। हाँ, तो स्ट्रिक्टली जो सेंटेंस है, पर अब इसका अर्थ है वो, और ये क्यों कह रहे हैं श्री अरविंद, यहाँ क्या बात कह रहे हैं ये? बेसिकली हम, जब भी हम डिवाइन पावर की या भगवान की, हम भगवान को बेसिकली एक फ्रेमवर्क में लेकर आ जाते हैं कि भी भगवान इसके मुताबिक ये ऐसे करते थे, भगवान ऐसे इस तरह से, बेसिकली हम उनको इंटरप्रेट करने की कोशिश करते हैं। ये फिर से ब्लैक हो गई है स्क्रीन में। तो इस दिव्य शक्ति को हम, जो हमारे नोशंस हैं माइंड के, हम उनके उसके मुताबिक चलाना चाहते हैं। यहाँ पर एक उदाहरण इसका ये देखिए देविका जी, कि हमारा फ्रेमवर्क हमको एक सर्टेन इंप्रेशन दे रहा है, एक नोशन दे रहा है इस सेंटेंस का, जो ये कह रहे हैं वहां तक नहीं पहुंच रहा। जैसे हम भगवान को ये हम इंटरप्रेट करते हैं रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट, ये हाँ, ये काम कह ही करेंगे तो क्यों रहे ये, हैं ये बात यहाँ, जब ये हम जो रिवॉर्ड और, सेंटेंस कह रहा है आपने तो उसके ऊपर केंद्रित हो, जो सेंटेंस कह रहा है। जैसे इसका एग्जाम्पल ये हुआ, जैसे हम रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट्स बोलते हैं कि भगवान इस तरीके से करोगे तो रिवॉर्ड मिलेगा, इस तरीके से करोगे तो पनिशमेंट मिलेगा। हाँ, पर ये तो कह ही नहीं रहे तो यहाँ, ये नहीं कह रहे। ये क्रूड सरफेस क्या हुआ? क्रूड मतलब जो अभी, क्रूड सरफेस एस अशिष्ट सरफेस नोशंस क्रूड हैं बड़े। अब संगीत के बारे में कोई अभी बेचारा नया व्यक्ति है, वो कहे संगीत की बारीकियां, आप संगीत के विषय में कहेगा तो क्या कहेगा? किसी को बेचारे को कुछ पता नहीं है, और वो राजा कैसे काम करता है, ये एक सेटअप कैसे काम करता है, एक कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है मनुष्य के बीइंग की, एक एक बच्चे से पूछो तो क्या बताएगा? क्रूड माइंड है वो, अभी सिद्ध नहीं हुआ वो। आदमी क्या कहता है, लीनियरी खाली बस, आपने तो ये कहा था, ये कैसे किया, ये आप कहते हो टू कॉम्प्लेक्स है, ये कैसे समझाऊं मैं तेरे को?
जैसी डिबेट ये बैठ के करते हैं, आपने तो कल ये कहा था, आज ये है। आपको समझ ही नहीं आ रहा कि मिनट टू मिनट आपको, अब आश्रम मैनेजमेंट है वहां, कितना आपको उसके अंदर बड़ा सेंसिटिव होना पड़ता है एक एक चीज के प्रति। क्रूड जो व्यक्ति मैं कर रहा हूं, आश्रम में रह रहा है व्यक्ति ऐसी बात कर रहे हैं वहां या कर रहे थे, ये तो ऐसे नहीं करते, ये तो वैसे नहीं करते। अरे भाई, ये बड़ी सेंसिटिव मामला है, आप इस तरीके से नहीं इसको सोच सकते। तो क्रूड, क्रूड है, शिक्षित नहीं है वो। सरफेस नोशंस ऑफ ओमनिसियंस एंड ओमनिपोटेंस, ये सेंटेंस कहना क्या चाह रहा है? लिटरल अर्थ तो ये है कि इग्नोरेंट माइंड की जो डिमांड है, उस त्रुटि में मत जाओ, उसको अवॉइड करो। डिमांड ऑन द डिवाइन पावर, भागवत शक्ति के ऊपर वो डिमांड करता है इग्नोरेंट माइंड। किस चीज की डिमांड करता है? उसके अपने जो क्रूड सरफेस नोशंस हैं, किस चीज के? ओमनिसियंस और ओमनिपोटेंस के। भागवत शक्ति सदा उनके अनुरूप क्रिया करे। तो यहां ये बात कह भी क्यों रहे हैं और इसका अर्थ क्या निकल रहा है? तो ये जो क्रूड सरफेस हुआ उसका ओमनीसियंस ओमनी प्रेजेंट का क्या मतलब? सर्व शक्तिमान है भगवान और सर्वज्ञ है। सर्वज्ञता और सर्वशक्तिमत्ता को लेके मनुष्य के अंदर बड़े क्रूड सरफेस नोशंस होते हैं, और वो उन्हीं को लेके उनके ऊपर थोपने का प्रयास करता है। ये बात पहले तो कह क्यों रहे हैं और इसका, हाँ जी देविका जी, इसीलिए मैंने तो कल कहा था कि ये जो है अपना, ये तो और भी भयंकर है। आपने तैयारी करी क्या इसकी? नहीं, मैंने तैयारी कर ली। मेरे हाँ, पास बुक भी नहीं थी, और मैं बाहर थी, तो बाहर ही हूँ मैं तो। चलो, एनी हाउ, इसकी ये लिटरल अर्थ तो हुआ ये। तो क्रूड सरफेस नोशंस जो हैं वो ओमनिसियंस और ओमनीपोटेंस के, उसके जो नोशंस हैं, इग्नोरेंट माइंड की जो डिमांड है डिवाइन पावर पे की, तो वो कि हमेशा इस तरीके से एक्ट करे। इसका क्या अर्थ हुआ? हम्म? जी, अर्थ तो फिर यही है। मतलब ये तो बड़ी रूटीन के अंदर ये है कि हम भगवान को अपनी शर्तों के मुताबिक चलाना चाहते हैं। हमारी अपनी डिमांड्स हैं और उसके मुताबिक ही भगवान चले। जो हमारा आउटर माइंड जैसे भगवान को इंटरप्रेट कर रहा है, डेप्थ में आप तो हम जाते ओमनिसियंस नहीं और है। ओमनीपोटेंस शब्द को क्यों छोड़ रहे हो? हमारी शर्तें नहीं, ओमनिसियंस के हमारे जो नोशंस हैं। हाँ जी, तो वही ओमनिशियंस और ओमनीपोटेंस हम डिवाइन के लिए ही यूज करते हैं, भगवान के हाँ, लिए, कि पर वो ये क्या हर क्या जगह है। नोशंस हैं उसके बारे में, यही यही तो बात कर रहे हैं कि ओमनिसियंस और ओमनीपोटेंस के रूट सरफेस नोशंस क्या हैं। और यहां इस सेंटेंस का अर्थ क्या है? कोई आर्बिट्रेरी लिख रहे हैं क्या श्री अरबिंदो? यूं ही लिख रहे हैं वो, कोई बात उनको कहनी है? पीछे जो चला आ रहा है उस कॉन्टेक्स्ट में ये कहाँ फिट इन करती है ये बात? पीछे ये बात चली आ रही थी कि माँ के जो तरीके हैं वो इतने स्विफ्ट हैं, आपकी बुद्धि से इतने परे हैं। उन वो रिद्म्स बनाती है, तोड़ती है। उनकी कौन सी जो पर्सनैलिटी है वो अब सामने आ जाती है, कौन सी बाहर आ जाती है। और आपका जो स्टम्बलिंग कॉम्प्रिहेंशन है, रैपिडिटी ऑफ हर विजन एंड एक्शन आउटरन इट्स स्टम्बलिंग कॉम्प्रिहेंशन, ये सारी बातें करके आ रहे हैं श्री अरबिंदो ऊपर। Avoid also the error of the ignorant mind's demand on the divine power to act always according to our crude surface notions of omniscience and omnipotence.
इसमें ये भी हम कह सकते हैं, जैसे हम माँ को हम इंटरप्रेट करने की कोशिश करते हैं और माँ हमारे मुताबिक चले, तो या जो हम इंटरप्रेट कर रहे हैं, जैसे माँ ने किसी को कुछ बोला, हम उसी कोई रूल बना देंगे और उसी की माँ तो यही कहती, जैसे मेडिटेशन की ही पीछे बात एक बार हुई थी, तो माँ ने अगर किसी को इंडिविजुअली बोला होगा कि हाँ देखो मेडिटेट करना चाहिए, तो हमने यही चीज सबके लिए ही कह दिया कि भी नहीं, माँ तो यही बोलती थी। बेसिकली तो हम ये माँ की जो ओमनीसियंस और कोटेशंस। ओमनीपोटेंस कहाँ आया इसमें? ओमनीसियंस के और ओमनीपोटेंस के सरफेस नोशंस, ये दो शब्द तो लेने ही पड़ेंगे, सेंटेंस में है। हाँ हमने जी। एक चीज ये कर रखी है अभी कि हम चाहते हैं डिमांड करना क्रूड सरफेस, हमारे जो नोशंस हैं उनके मुताबिक हम माँ को चलाना चाहते हैं या डिवाइन पावर को। अरे पर ओमनीसियंस और ओमनीपोटेंस शब्द भी तो लिखे हैं यहाँ, इनको भी तो काम में ले। वो बात तो हो गई, वो कि माँ को मुताबिक, पर किसके मुताबिक? क्रूड सरफेस नोशंस। किस चीज के नोशंस? ओमनीसियंस और ओमनीपोटेंस। ये कैसे हम ओमिट कर सकते हैं? ये तो भूल नहीं सकते ना इस शब्द को, ये तो यहाँ लिख रखा है। हाँ जी। हाँ जी। तो आप तो वही बात कह रहे हो कि आप हमारे मन के मुताबिक चलाते हो, मन के, तो यही वाला मुताबिक तो चलाता है, इसीलिए समझ में नहीं आती ये बात। भाई आपकी, हम एक ही चीज के प्रति उसके केंद्र को घुमा रहे हैं बार बार कि हमारे मुताबिक चलाते हैं, ऐसा कह के हमको लगता है हम समझ गए इस बात को, इसीलिए तो मुताबिक चलाते हैं। पर अभी स्ट्रिक्टली ये देखो कि ओमनिशियंस और ओमनीपोटेंस के हमारे क्रूड सरफेस नोशंस हैं, वो क्या हैं? उनके हिसाब से चलाना चाहते हैं। सेंटेंस तो हमको देखना ही पड़ेगा। देखो यहां ये फिट इन क्यों किया, ये तो मैंने बता दिया, क्योंकि ऊपर से कहते आ रहे हैं। अब सेंटेंस को तो देखो ही गए, उसके बिना अलग से कैसे लिया होगे? पहले तो लिटरली जो श्री अरबिंदो कह रहे हैं उसको स्ट्रिक्टली पढ़ो। पढ़ने के अंदर लगभग ये है, ये मानसिक विकास की प्रॉब्लम है। ये मैं चाहता हूं पर मेरे को तो धोखा ही मिल रहा है। इसकी तैयारी करी थी क्या कल? तो फिर अब अपने पास कोई इसके बहाना तो देखो है नहीं। ओमनिसियंस और मैंने जबकि कल उठते टाइम मैंने कहा ये बहुत भयंकर, कल इसको सुनी थी क्या पूरी? मैंने कहा ये और भयंकर बात आने वाली है, तो उसमें तो और ज्यादा ध्यान देना चाहिए। सर्वज्ञता के, ओमनिसियंस मतलब सर्वज्ञ और ओमनिपोटेंस मतलब सर्वशक्तिमान, इसको लेके हमारे जो क्रूड सरफेस नोशंस हैं, तो हमारे मन के मुताबिक नहीं कह रहे देविका जी, ये तो कह रहे हैं हमारे जो नोशंस हैं, धारणाएं हैं हमारी, क्रूड, अशिष्ट, सतही धारणाएं सर्वज्ञता को लेके और सर्वशक्तिमत्ता को लेके, हम चाहते हैं कि भागवत शक्ति उसके अनुसार क्रिया करे। तो श्री अरबिंदो कह रहे हैं इस इग्नोरेंट माइंड की इस डिमांड को भी, इस एरर को भी अवॉइड करो। ये तो लिटरल अर्थ तो आपके समझ में आ रहा है ना? हाँ जी। ये लिटरल अर्थ है इसका। आपको खाली करेक्ट मैं इस बात में कर रहा हूं। आप ये कह रहे हैं कि हम अपने मन के मुताबिक भगवान को चलाना चाहते हैं। मैं कह रहा हूं मन के मुताबिक नहीं, क्रूड सरफेस नोशन हमारे जो सर्वज्ञता के और सर्वशक्तिमत्ता के हैं उनके मुताबिक चलाना चाहते हैं, ये सेंटेंस कह रहा है, बस ये डिफरेंस है। हाँ जी। हाँ जी। इसमें अब हम आप दे ये, हाँ जी, जैसे हम ओमनीपोटेंस का एग्जांपल अगर हम देखें, तो हम ये कह सकते हैं माँ में इतनी शक्ति है, माँ ही हमें बदल देगी। अब ये जो है, एक तरह से ठीक भी है और एक तरह से ये तामसिक भी है। या हम कह देखो इसने बुरा करा है, हाँ माँ देख रही है ना, माँ इसको अब देखना कैसे इसको वो देंगी, दंड देंगी। देखिए तो ये अब ये, सतही मन से नहीं आ सकता। ये तुरंत आपको ये, अब ये सेंटेंसेस अनुभव की मांग कर रहे हैं। सर्वशक्तिमत्ता को लेके कभी मांग उस तरीके से करी तो है क्या कॉन्शियसली? और जबकि सबकॉन्शियस भागों में सब में यही है, चमत्कार कर देंगे। हम तो गए थे ठाकुर जी के पास, सवामणि बोल दी और वो चमत्कार कर देंगे। या ये एक बहुत प्रचलित आम धारणा कि अंत समय के अंदर आपने नाम लिया और तर जाओगे अंत समय के नाम से, और ये पूरी संस्कृति में
व्यापक रूप से इस चीज को स्वीकार भी किया जाता है और कई आपके उदाहरण भी इसके अंदर बताए जाते हैं। गणिका, गिद्ध, अजामिल, ये सारे के सारे बोलते हैं कि इनको तो नाम की महिमा का सेंस नहीं था, ये तो बिना जाने भी नाम लेते हैं और ये तर जाते हैं। राम से बड़ा राम का नाम, ये सारी प्रचलन के अंदर है। ओमनीपोटेंस, सर्वशक्तिमान, करतुम अकर्तुम अन्यथा करतुम, जितने आपके सत्संग हैं वो ये क्या कह रहे हैं, भगवान तो करतुम अकर्तुम अन्यथा करतुम, कुछ भी कर सकते हैं। अकर्तुम, कुछ भी किए को अंडू कर सकते हैं। अन्यथा करतुम, उसके अलावा कर सकते हैं। ये डीपली प्लांटेड है। ये आपके मेरे की बात नहीं है, ये बहुत व्यापक रूप से इसको फैलाया जाता है, जिसमें एक स्तर पे सत्य हो सकता है कि भगवान को तो आप आर्बिट्रेरली जीवन भर तो कोई आपने वो दूसरे काम किए, और अब अंत समय के अंदर आप उससे अन्यथा कोई कार्य कर रहे हो। क्यों, भगवान सर्वशक्तिमान है, उसको तो आप कोई टिकट दे दोगे, टिकट दे के आपने तो लास्ट समय, अंत समय, और प्रचलन में था काशी जाओ, वहां मृत्यु प्राप्त करो। अब तो करो तो वहां आरा, आरा बंद कर दिया, नहीं तो वहां लास्ट के अंदर समय जाके कि वहां भी मृत्यु का तो क्या पता, तो आरा था उससे अपने को कटवा लेते थे, मोक्ष हो गया। कितने क्रूड नोशंस हैं। ओमनिसियंस, सर्वज्ञ, सब जानता है भगवान, इसलिए उनको, अरे भाई यही तो उदाहरण जब आध्यात्मिकता के दे रहे थे, आप लोग भी जब ये कहते हो कि जो समस्याएं हैं और वो तो डिग्री दे देंगे, आप चैत्य भी उनको दे दो, थोड़ी स्प्रिंकलिंग कर लो चैत्य की, तो व्यापार के अंदर जो उनके दोष है, डिग्री तो वो वाली संस्थाएं दे देंगी, आप उसको एक चैत्य की स्प्रिंकलिंग और कर दो ऊपर से, आइसक्रीम वो बना देंगे, आप थोड़ी इलायची विलायची डाल दो इसके ऊपर, खुशबू अच्छी आ जाए। स्टफ तो वही चाहिए, जगत की बात तो वही चाहिए, प्रोफेशनल्स चाहिए अपने को। हम ये बात माँ से क्या मांग करते हैं, क्योंकि ये ही मांग वहां भौतिक रूप में माँ दिख रही थी, इसलिए श्री अरबिंदो ये कह रहे हैं कि आपके क्रूड नोशंस माँ के ऊपर ये मत लगाओ। और कौन डिवाइन पावर, दिव्य शक्ति माँ वहां मौजूद है ना, उसके ऊपर हर व्यक्ति की ये डिमांड है, ये तो बढ़िया है कि आज वो फोटो में दिख रही है, नहीं तो आप कर ही नहीं सकते उसके प्रति ईमानदारी से कार्य। अरे भौतिक प्रकृति निकल ही आएगी 10 दिन बाद के अंदर, वो तो ढीली पड़ जाएगी। भाई जितना भाव लेके हम चलते हैं इस टेक्स्ट के प्रति, आप अगर उसको एक पैराग्राफ ही नहीं पढ़ पाते, आप देखो तो सही। ओमनीपोटेंस, सर्वशक्तिमत्ता को लेके व्यक्ति नहीं, पूरे समाज में जिस तरीके के, अरे भगवान कुछ भी कर सकता है, तो कुछ भी आर्बिट्रेरीली कर सकता है। अब बारीकी से जो सजेशंस हैं उनको सुनो तो सही, कुछ भी कर देगा भगवान। आप ये धर्म में और में ये सजेशन सुनते हो ना देविका जी, आपकी बात नहीं कोई, ये तो कॉमनली है। हाँ जी, हाँ जी। अरे भगवान को पुकारो, तेरे सारे प्रारब्ध हैं और हैं, वो भी मेट देगा, सारे ये भी कर देगा। धर्म में ये बातें बहुत प्रचलित हैं, और इसलिए आप गए, आपको लाइसेंस मिल गया, जाके सुबह मंदिर गए, अब जाके गलत तोल लो, गलत काम कर लो। इसीलिए ये समझने में इतनी दिक्कत आती है कि पूरा जीवन माँ का हो सकता है क्या, इसीलिए तो आर्बिट्रेरीली करना चाहता है हर जना, अपने तरीके से सरेंडर भी कर दिया उसने, क्योंकि उसने किसी समय ये कह दिया आ जाओ माँ चलो, उसको करना तो वही है, मेरे को ये चीज करनी, मेरे को ये मांस खाना। अब खाने से पहले कह लो मेरे को तो खाना है, बस मैंने एक उसका एक ये कर लिया, आ जाओ माँ चलो आपको ऑफर कर देता हूँ, चलो इससे तुम जो और उसमें जो जा रहे थे उससे हो सकता है थोड़ा ये फर्क पड़ जाए, पर अभी कर्म का प्रवर्तन, कर्म का आरंभ
आप कर रहे हो। आपको कौन सी क्रिया करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, अभी तो आप उसके परिणामों से बचने के लिए मां को बुला रहे हो। आपकी कॉन्शियसनेस जानती है। अभी आपके कर्म जो करते हो उसकी जो सफलता असफलता आप अपनी पीठ थपथपाते हो ना, बाद में ऐसी कोई बात ही नहीं रहेगी। मैं कह रहा हूं ये इनफ आप सोच ही नहीं सकते कि, क्योंकि ये तो कॉमनली इतना चारों तरफ फैलाया गया है कि भगवान सब जानता है, मां तो सब जानती है। तो ये सरफेस क्रूड नोशन है। तो क्या सर्वज्ञ नहीं है मां? बिल्कुल सर्वज्ञ हो सकती है या नहीं हो सकती, उससे ये जो सेंटेंस है ऑपरेशनली इनसिग्निफिकेंट है। वो सर्वज्ञ है या नहीं है, इससे आपको क्या करना चाहिए, उस बात में क्या बात आई भाई? मां सर्वशक्तिमान है, उससे आपके करने नहीं करने में आपको रिलीफ कहां मिली इस बात से? और आप अपनी निष्कर्मण्यता के लिए कहते हो वो तो सर्वशक्तिमान है, मैं तो चला चला के उल्टे काम करूं मां से, और वो सर्वशक्तिमान है। ये कैसे लागू हो सकती है, मेरे को तो ये बताओ। वो सर्वशक्तिमान है, मैं चला के उससे उल्टे काम करूं। इसका मतलब वो है कि जो बात हम कह रहे हैं उसमें हमें किसी तरह का विश्वास रहता है ही नहीं, कुछ भान भी नहीं है कि वो क्या है उसका। सर्वशक्तिमत्ता का सेंस तो है क्या हमारा? सर्वशक्तिमत्ता का हमारा सेंस है, हमारा ईगो जो नहीं कर पाता वो भगवान कर लेता है। मैं जो नहीं कर पा रहा वो तो सर्वशक्तिमान है, वो तो कर सकता है भाई। जैसे हम कहते हैं भाई मेरे पास तो रिसोर्स नहीं है, वो पैसे वाला आदमी देख वो तो ला सकता है। बच्चा जब आपके पास आके रोता धोता है, करे भैया उसकी तेरे को बराबरी करने की क्या आवश्यकता है, वो तो सब कुछ कर सकता है। और ओमनीपोटेंस के आपके क्रूड सरफेस नोशन क्या हो सकते हैं, क्योंकि यही तो रोक रहे हैं। और ओमनीसियंस सर्वज्ञ, भगवान तो सब कुछ कर सकता है। लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ, माँ कहती है कि पीपल आर लूजिंग फेथ इन मी बिकॉज आई डू नॉट हैव ऑल द मनी टू रन दी आश्रम। अरे इनके लिए तो यहाँ जीवन देने आए थे, इनके पास तो वो बात ही नहीं है। आप उनको एक कोइन ऑपरेटेड मशीन मानते हो, अवतार को और को। अच्छा राम जी को नहीं पता, शबरी के गुरु जी को पता कि राम जी आएंगे, राम जी को नहीं पता। अगर अवतार के बारे में ये कह दिया जाए कि वास्तव में श्री कृष्ण को नहीं पता था, आपके धर्मगुरु सारे मिलके क्या कह रहे हैं, ये तो लीला के लिए कर रहे हैं। उनके ये स्वीकार ही नहीं हो सकता कि अवतार को नहीं पता तो नहीं पता। उनकी चेतना के अंदर ये चीज प्रवेश नहीं कर सकती कि उसको अनावश्यक चीजों का पता स्टफ करने की उसको जरूरत क्यों है, कि मैंने तो पूरा अपना कमरा भर रखा है, जो भी कुछ है सब भर दिया मैंने तो इंफॉर्मेशन से। ये बात उनको सेंस नहीं। भगवान युद्ध को रुकाने के लिए पहले वहां गए थे, संधि करने के लिए गए थे, वहां गए थे ना। तो वो खाली एक कहने के लिए गए थे? ये तो कह रहे लीला के लिए गए थे, बाकी उनको तो लड़ाना था। तो भगवान को ये चीज प्रूव किसको करनी थी? भाई आपके नोशंस हैं ये। आप अगर धर्म को बारीकी से ये देखो, और धर्मगुरु उसका जो विवेचन करते हैं सब बिल्कुल बकवास है, टोटल बकवास है। और आप जिस तरीके से जगत को देखते हो वो उससे ज्यादा बकवास है। आपके जो नोशंस हैं जगत को लेके, शिक्षा को लेके, परिवार को लेके, क्योंकि ऑपरेशनली इनसिग्निफिकेंट है। आपसे आपको उससे ये गाइडेंस नहीं मिलती कि मैं करूं क्या। अरे मां सर्वशक्तिमान है मान लिया, पर आपको जिस प्रोजेक्ट पे काम करना उसमें अब क्या? आपको अगर यहाँ कोई फाइल तैयार करनी है, मां सर्वशक्तिमान है या सर्वज्ञ है, इसको अब यहां कैसे लागू करूं, उसका क्या मतलब है? वो जानती है तो आपकी भावना जानती है, उससे आप उसको बेवकूफ नहीं बना सकते कि आप क्यों कर रहे हो। बाकी जो चीज मां को नहीं जाननी, जैसे गीता के अंदर कहा कि एक अवतार को वहां अमेरिका के अंदर मिस्टर जोन्स ने क्या आज नाश्ते में लिया है, ये बुद्ध को जानने की क्या जरूरत है? अगर आप ये कहो किसी को कि ये तो
आपका विश्वास डगमगा जाएगा। व्यक्ति का इससे विश्वास डगमगा गया, वो तो ये मान के बैठा है कि इनकी किडनी जो है आध्यात्मिकता से सही चल रही है। और अगर ये कह दे कि इसके पास कोई शक्ति नहीं है, आपका विश्वास उठ जाएगा। लगभग गुरुओं से विश्वास आपका उठ जाएगा। आप जिन मां श्री अरविंद की भक्ति कर रहे हो, आप जब पुकारते हो, उनके अंदर प्रकट होने की शक्ति नहीं है, तो आपके तो फिर कैसे जाऊं मैं? क्या करूं? वो आके आपको कोई अंतर्दर्शन नहीं दे सकते। वो कुछ नहीं कर सकते आपके जीवन में। यही यशोदा माँ ने कृष्ण प्रेम को कहा कि आज के बाद कोई तो अंतर्दर्शन नहीं होंगे, कोई तेरे को कुछ नहीं होंगे जो तू आध्यात्मिकता की सोच के आता है। सोच ले, आप सोच के देखो सीरियसली इस बात को, कि आप एक फिजिकल व्यक्ति आपको नजर आ रहा है, वहां अभी भावना है। आपके दायरे में भावना रख रहे हो, वो एक बात है। और आप उसी के ऊपर आधारित हो, आपके रह रहे कि इनसिक्योर विचार नहीं आएंगे। अरे 1 सेकंड के अंदर तो इनसिक्योर विचार आ जाते हैं। वहां बम आपके घर के नजदीक पड़ते ही तो इनसिक्योर विचार नहीं आ जाते। तो ओमनीपोटेंस को लेके और ओमनीसियंस को लेके ये जो विचार उठते हैं, अब क्या बताएं इसको। इसलिए मैंने कहा ये भयंकर बात है। यहां आके आपकी एक चेतना को लगता है कि आप माँ को समर्पित हो। बस वो इंप्रेशन, ये उन भागों को आपको इसलिए देना जरूरी है कि आप वास्तव में उसको खोल के देख न लो। ढक दिया उसको ऊपर से इस भाव से कि मैं तो सरेंडर्ड हूं। अपन ने देखे हैं ना ऐसे लोग जिनको ये पूरा पक्का इंप्रेशन है कि माँ के अलावा तो कोई चीज ही नहीं है हमारे जीवन के अंदर। ये इतनी बड़ी फिल्म बढ़िया चढ़ा रखी है। कितने कितने लोग अपन ने देख रखे हैं वो। और हर व्यक्ति की ये भान है कि मेरे को तो जैसा जगत दिख रहा है वैसा तो है ही। सर्वज्ञता कहता है वो माँ की सर्वज्ञता, जबकि उसको तो खुद की सर्वज्ञता में विश्वास है। अब पहचान के तो देखो, किसी को कोई क्वेश्चन करता है खुद की बुद्धि के ऊपर? मैं तो खाली ये थोड़ा थोड़ा इसको खोल रहा हूं। ये मैंने कहा ना कि अभी तक आई उससे बिल्कुल छिन्न भिन्न हो गई ये बात। क्या समझ में आता देविका जी? हाँ जी, ये तो समझ में आया कि जो ओमनिशियंस और ओमनीपोटेंस है, इससे रिलेटेड हम लोग इंटरप्रिटेशन करते हैं भगवान की, माँ की। जैसे माँ है, सब कुछ देख रही है, माँ की बहुत पावर, माँ में बहुत पावर है, या भगवान में बहुत पावर है। जैसे हम अगर मान लो मंदिर गए या बहुत लंबी लाइन, हमें जल्दी दर्शन हुए, तो हम कहेंगे देखा हमने कोई पुण्य करे थे, भगवान हमें देख रहे हैं, हमें जल्दी दर्शन हो गए, तो जैसे हम स्पेशल है। तो हर जगह पे कोई भी हमारा काम, बट ये मतलब ये तो रूटीन की ही चीज है। जैसे हम भगवान को हर चीज में ये देखते हैं कि हमें वो देख रहे हैं, और अगर हमारे साथ अच्छा हो रहा है तो हमारे ही अच्छी चीजें हैं, जो हमारे नहीं, अच्छे इसमें कर्म है जिस वजह से। ओमनिसियंस को पकड़ो। ओमनिसियंस एक शब्द को पढ़ो पकड़ो, ओमनीपोटेंस फिर पकड़ते हैं। भगवान हाँ, सर्वज्ञ ओम हैं। सर्वज्ञ है। तो सर्वज्ञता से यही हम देख रहे हैं कि वो हर चीज देख रहे हैं। जानते हैं। वो जान हाँ जी, जानते हैं। जानते सर्वज्ञ हैं। मतलब उनको हम्म। पूरी चीज का ज्ञान है। देख रहे नहीं है, जानते हैं। देखने तो एक बच्चा कोई एक्ट को देख सकता है, जानता क्या है? आप न्यूज़पेपर तो पढ़ सकते हो, उसको देख सकते हो। जानना एक चीज है, देखना एक चीज है। भगवान सर्वज्ञ है, सब चीजें जानता है। ये हमारी चेतना कैसे ट्रांसलेट करती है? हाँ जी। नहीं, कैसे करती है इसको तो वो ट्रांसलेट? हाँ जी, ये तो यही कि भगवान सब जानते हैं, तो यही ये तो मतलब हर छोटी छोटी चीज के अंदर ही हम ये देखते हैं। छोटे हमारे कुछ भी हम कर रहे हैं तो हम ये कहते हैं अच्छा, ये जो है क्या कहते हैं, नहीं, भगवान आपके जैसे। साथ रह रहे हैं। फिजिकली हाँ जी। भगवान आपके साथ रह, गुरु रह रहे हैं। हाँ जी। अच्छा, गुरु नहीं जानते? ये तो मेरे को पहले बताया क्यों नहीं? बारिश हो रही है या बाहर ये चीज हो हम्म। रही है और वो चीज भीग गई, शिष्य को कहे और शिष्य ये कहे गुरु साक्षात परम ब्रह्म, वो तो सर्वज्ञ है। तो गुरु जी को यही चीज का नहीं पता? अच्छा, आपके अंदर भक्ति है तो आप ये कहते हो तो गुरु जी
नियमों में काम करते हैं। अब ये वाली बात भी ठीक है क्या? गुरुजी सर्वज्ञ फंडामेंटली है, एक्चुअली नहीं है। फिर आप अपने शब्दों को तोड़-मरोड़ करना शुरू कर दोगे। इस बात को रखे कहाँ? अभी तो वो भगवान ऐसा है जो सशरीर नहीं है, इसलिए आप ये कह रहे हो सारी चीज़ जानता है, देखता है, जो भी आप कह रहे हो। मैं तो कह रहा हूँ एक ऐसे व्यक्ति के साथ रह रहे हो आप, उसकी सर्वज्ञता स्वीकार कर लोगे क्या? जो आपको हर घड़ी-घड़ी ये कहे तो मेरे को आके बताया क्यों नहीं यार? मेरे को क्या पता? मेरे को बताना चाहिए ना आपको। डाइनिंग हॉल में क्या समस्या चल रही है, अगर आप मेरे को नहीं आके बताओगे, मेरे को कैसे पता चलेगा? और आप ये कह रहे हो कि परात्परा हैं ये शक्ति। तीनों भाव श्री अरविंद ने माँ के बता दिए कि ये ट्रांसेंडेंट है, ये यूनिवर्सल है और इंडिविजुअल है। उन माँ को ये नहीं पता कि तुम वहां किचन में मेरे क्या चल रहा है, डाइनिंग हॉल के अंदर क्या चल रहा है, आपकी चेतना इसको कैसे एक्सप्लेन करेगी? करो। आप तो मानवीय टर्म्स के अंदर, क्योंकि आपके माँ के प्रति भक्ति है तो आप इसको उस तरीके से कहोगे। जो आपका गुरु नहीं लगता और जिसके लिए सुविधाजनक है, आप हंस के मन में तो कहोगे पता नहीं इसको, इसको क्या पता। रात दिन डिबेट में यही तो है, सदगुरु दूसरों को तो ज्ञान दे रहे थे, खुद को सदगुरु को जब माइंड के अंदर, ब्रेन के अंदर कोई प्रॉब्लम हुई तो आईसीयू के अंदर भर्ती करवाया। तो इनको खुद का तो पता ही नहीं। जगत हंसता है ना। जिसका जो गुरु है उसको तो वो डिफेंड करने का प्रयास करता है, जो नहीं है उसके ऊपर हंसता है। ये देखो, ये कह रहे गुरु, ये गुरुजी, इनके गुरुजी तो, ये गुरुजी तो वहां जेल के अंदर बैठे हैं और ऐसे अभियोग के अंदर की जो कहते भी शर्म आती है। अब उनके भक्तों का विश्वास डगमगाए या क्या करे ये गुरुजी, या अंध भक्ति करो। गुरु आपके साथ रह रहा है। मैं तो कह रहा हूं सर्वज्ञता एक शब्द के ऊपर अटको, खाली ओमनीपोटेंस तो छोड़ो। गुरु आपका सर्वज्ञ है। और राम जी को ये सेंस नहीं है कि ये मृग जो है ये सोने का कभी हुआ है क्या? आप जिनको कह रहे हो कि ये भगवान है, वो पार्वती जी, वो भ्रमित हो गई। और वो भ्रमित होके और वो राम जी को जो मान बैठी और वो जो कर बैठी, और उसके कारण शिव जी ने उसको छोड़ दिया। ये तो मानवीय तरीका भी नहीं है। जो वो वर्णन कर रहे हैं, क्या तो करने के लिए कर रहे हैं। जो पार्वती जी के बारे में बात कही गई है, ब्रह्मा जी को वहम हो गया ग्वाल बालों को देख के, और उन्होंने कहा, "अरे ये एक के मुंह का जूठा निकाल के भगवान के मुंह में दे रहे हैं, ये कौन से तरीके हुए?" अभी आप सारी चीजें आपके अपने हाथ में हैं, इसलिए आपको कोई चीज ऑफेंसिव नहीं लग रही। अब तो आपके समय से आप सारे अपने काम कर लेते हो, आपके जितने जो भी उद्देश्य हैं वो सब पूर्ति कर लेते हो, और फिर बाद में कभी एक डेकोरेशन के रूप में माँ को भी सोच लेते हो। अरे काम तो आपके किए चल रहे हैं, माता जी थोड़ी चला रही है आपको। उसमें बीच में भावना कर लेते हो माता जी की, और वो भी इसलिए करते हो कि आपको एक ये लगे, हाँ भाई ठीक है माता जी है, कि मेरे को कोई है। जैसे बच्चा कोई कोई चीज पकड़ के सोता है तो माँ उसको कोई गुड़िया गुड़िया दे देती है उसको पकड़ के, ये इंप्रेशन आए, हाँ मैं माँ को ही पकड़ के सो रहा हूँ। ठीक है, उतना अगर साइकोलॉजी को आपको हेल्प करता हो। ओमनीसियंस, सर्वज्ञ, फिजिकल रूप में गुरु आपके साथ रह रहा है, और गुरु चिल्ला रहा है, अरे मेरे तो दर्द हो रहा है, मेरे को तो दर्द हो रहा है। रामकृष्ण जी को आप ये कह रहे हो कि अवतार हैं, ये गुरु नहीं, ये तो अवतार हैं। जब उनके दर्द हो रहा है कैंसर का भयंकर रूप से, डॉक्टर आया तो उसके सामने यो रोए बिलखें, डॉक्टर साहब आप ही मेरे को ठीक करोगे। डॉक्टर जी के जाने के बाद में उनके जो शिष्य हैं इतने नाराज हुए कि उनके सामने नाटक करने की जरूरत क्या थी। आप तो सर्वशक्तिमान हो, आप सर्वज्ञ हो, ये हो वो हो। आपको लगता है वो गुरुजी सारी टाइम वरद हस्त, जो आपकी जो कोई मूर्ति है वैसे यों करके बैठे रहते हैं? आप गुरुजी के पास गए, तथास्तु, गुरुजी तो खाली तथास्तु बोलने के लिए हैं। आप कोई भी मूर्खता का काम उनके पास लेके जाओ, अरे ये तो माँ है, तो मतलब यही तो कहते हैं हम, माँ तो देखो माँ है। और ये कहे कि आप क्या कह रहे हो, आप धीरे से देखो आप,
मैं जीवन में कुछ करूंगा नहीं, ये तो माँ है ही। मतलब क्या मतलब हुआ इस बात का? इसलिए मैं कह रहा हूं ये पूरी उखाड़ रहा है आपकी चीज को, और ये इनफ आप कभी देख ही नहीं सकते जब तक कि आप दूसरी चीज में नहीं होगे। आप इस चीज का अब एहसास भी आपको नहीं हो सकता कि क्या सेंटेंस है ये। मैं तो कह रहा हूं गुरु आपके पास है, क्यों देविका जी, कुछ कुछ तो खुलता है क्या ये? हमको सेंस ही नहीं है हाँ कि जी। सर्वज्ञता होती क्या है। आपके पास गुरु फिजिकल रूप में गुरु है, और वो अब उसकी लिमिटेशंस, पर्सनैलिटी की लिमिटेशंस आपको दिखनी शुरू हो जाती है। नहीं नजर आएगी क्या पर्सनैलिटी की लिमिटेशंस? जब सर्वज्ञता के उल्टे उदाहरण क्या आएंगे, माँ से आपसे क्या कहेगी, तो आपको एक बार सोचना पड़ेगा, अरे ये तो सर्वज्ञ नहीं है। ये एक्चुअली हमारा जो उनके साथ संबंध है इसके वास्तविकता को उजागर कर रहा है कि वास्तव में हम जो उनको मान रहे हैं उसमें हमें श्रद्धा भी है या नहीं। नहीं है बिल्कुल भी, हाँ, तो उससे तो यही पता चल रहा है। बिल्कुल नहीं है। हमारे अपने तौर तरीके हैं, विश्वास डगमगा जाता है। एक और तो कह रहे हो आप विशेष काम कर रहे हो, और शिक्षा के ऊपर विश्वास है ही नहीं। तक मतलब जो भी है वो केवल मन का एक जो नोशन बना हुआ उसी के आधार पे चल रहा है। अरे भाई, आप अपने आप को एक एक पूरा एक चारों तरफ का जोन प्रदान कर रहे हो, जिसमें आप अपनी सुरक्षा, अपनी ये कि मैं किसी के अंडर हूं और ये जरूरी है, गलत सही की बात नहीं कर रहे हम। पर जो डिसाइसिवली इस कुकून को तोड़ के जाता है साधना में, वो व्यक्ति, और वो भी लंबे समय तक। श्री अरविंद और माँ ये कह रहे हैं कि फियर ऑफ बीइंग ड्यूप्ड, आपको धोखा दिया गया है। ये माँ श्री अरविंद के प्रति आपके जो ये अच्छी अच्छी कमेंट्रीज पढ़ते हो, उन लोगों का भान है, कहीं हमारे साथ धोखा तो नहीं हुआ है, ये भान है उनको। बातें क्या कर रहे हो आप? इसका क्या कर लोगे? इस प्रकृति का प्रॉब्लम उसके लेवल पे नहीं है। ये सेंस आने के बाद आपको हर चीज कुछ और बोलनी शुरू कर देगी। पर इसका मतलब ये नहीं कोई भी गुरु ओमनिसिएंट हो गया, कोई कोई भी ओमनीपोटेंट हो गया। सर्वज्ञ है ये माँ, सब जानती है। क्या जानती है वो? यही श्री अरविंद को वहां के डॉक्टर ने पत्रों के अंदर लिखा कि मेरी आवश्यकता क्या है यहाँ, डॉक्टर मेरे को रख क्यों रखा है डॉक्टर को। मैं आपको ये पढ़ के सुना देता हूं, पहले तो आपको ये सेंस तो आए कि अपन बात क्या कर रहे हैं। आपकी प्रकृति को टटोलना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये देखो इसके अंदर, नहीं। अब ये देखो आप, द वर्किंग ऑफ द थेरेप्यूटिकल फोर्स, इससे आपको ये सेंस आएगा हमारे नोशंस के बारे में। थेरेप्यूटिकल फोर्स ये कैसे क्रिया करती है, ये है लेटर्स के अंदर से। 35वां वॉल्यूम है, लेटर्स ऑन हिमसेल्फ एंड द आश्रम। जो नोशंस हैं, और आपको ये लगेंगे हाँ बिल्कुल ठीक बात है, द डिवाइन ग्रेस हैज सर्टेनली डन समथिंग। व्यक्ति कह रहा है, आई द आश्रम डॉक्टर क्या कह रहा है, एक्टेड अकॉर्डिंग टू योर एडवाइस एंड एक्स फेल्ट बेटर द होल डे। मैंने आपकी एडवाइस के अनुसार कार्य किया, वास्तव में डिवाइन ग्रेस ने कुछ किया तो है। इसमें उसकी ओमनिपोटेंस आ गई कि हाँ डिवाइन ग्रेस काम करती है। अच्छा, श्री अरविंद कह दे मैं पूरी रात डिवाइन ग्रेस की, क्योंकि आगे ये कहेगा कि आपने पूरी रात उसके ऊपर काम किया, और 1 डिग्री बुखार कम हुआ तो उससे तो एक मेटासिन काम कर जाती है, एक गोली काम कर जाती। आप कल्पना नहीं कर सकते कि हमारी प्रकृति क्या मांग करती है। वहम क्या है? ये वहम, और वो टूटेगा नहीं जब तक आपके ये नहीं आता
साइकिक, तब तक आपके ये वहम कि आप सरेंडर कर चुके, ये वहम टूट सकता ही नहीं, ये टूट ही नहीं सकता। वो तो साधना ही कर रहे हैं, वो जो कर रहे हैं सो ही कर रहे हैं, और भगवान ने ही उन कंडीशंस में डाला है, भगवान ने उन आत्माओं के चारों तरफ वो गोपियां इकट्ठी कर दी, कृष्ण जी आ गए, वो ये सब टोटल बकवास है। इट वॉज नॉट द डिवाइन ग्रेस बट द डिवाइन फोर्स। श्री अरविंद क्या कह रहे हैं उनको, ये डिवाइन ग्रेस नहीं काम कर रही थी। ये पेज नंबर है 35 पे वॉल्यूम का, 500 से 501। आपकी स्क्रीन चली गई दिखती है। हाँ जी। हाँ, ये बीच बीच में, इसके पीछे मेरे को नहीं पता था, देखिए ये इसका किसी भी उदाहरणों का और कारण है, मैं ये सोच के बैठा था। हाँ, ये पढ़ते ही कल इंप्रेशन ये आ गया था कि ये बहुत भयंकर बात है जिसका हमको दूर दूर तक आभास तक भी नहीं हो सकता। मिल गया ना। द डिवाइन ग्रेस, अब इस शब्द को बारीकी से देखो। डिवाइन ग्रेस है सर्टेनली डन समथिंग। ये आश्रम का डॉक्टर, और ये डॉक्टर कोई वैसे ही नहीं रहा होगा, उसका खाली नाम नहीं लिख रहे ये, उनमें आपका कोई अच्छा भला, क्योंकि जब वहां श्री अरविंद और माँ के साथ है वो, तो अब जो आपके ये डॉक्टर कई जो हैं, जो कह रहे हैं हम माता जी के तरीके से, इनकी कई पुस्तकें भी आई है हीलिंग को लेके, ये को लेके, वो को लेके, अब वो कितनी प्रामाणिक है वो इससे आप इसकी लाइट में देख लो इस पत्र की, जब श्री अरविंद स्वयं है, रवि श्री अरविंद से बात कर रहा है वो, तो ये कह रहा है डिवाइन ग्रेस ने वास्तव में किया तो है कुछ, मतलब उसको विश्वास नहीं है। आई, आश्रम डॉक्टर, एक्टेड अकॉर्डिंग टू योर एडवाइस, मैंने आपकी सलाह के अनुसार काम किया, और एक्स फेल्ट बेटर द होल डे। तो श्री अरविंद ने कहा इट वॉज नॉट द डिवाइन ग्रेस बट द डिवाइन फोर्स। भागवत शक्ति ने क्रिया करी थी, ग्रेस ने नहीं। शक्ति ने काम किया था, शक्ति लगाई थी उसके ऊपर। इफ इट हैड बीन द ग्रेस इट वुड सिंपली हैव सेड तथास्तु। हमारे ये नोशंस, मैंने कहा ना ये तथास्तु, एंड द थिंग वुड हैव बीन डन। हमारे सबके ये गुरु के पास गए, अरे माँ कुछ भी कर सकती है, मैं सारे दिन अपना निकम्मापन रखूं, मैं चाहे जो खाऊं, चाहे जो पीऊं, चाहे जो करूं। ये जब उदाहरण देता हूं तो व्यक्ति कहता है नहीं आप तो ये उल्टी बातें कर रहे हो, आप तो ये कर रहे हो। भगवान तो तथास्तु से काम कर देता है। ये आपके नोशंस है ओमनीपोटेंस को लेके। एज इट इज लास्ट नाइट आई हैड टू वर्क ए डैम लॉट फॉर दिस रिजल्ट। मेरे को बहुत ज्यादा काम करना पड़ा लास्ट नाइट। ये आपके परात्पर भगवान हैं जो पूरी रात किसी के लिए, आई ओनली होप इट विल लास्ट एंड कंप्लीट इटसेल्फ। मैं तो खाली यही आशा करता हूं कि मैंने जो पूरी रात काम किया वो लास्ट करे, लास्ट मतलब थोड़ा लंबा चले, और मैंने जो क्रिया करी थी वो अपने आप को पूरा करे, पूरा करे मतलब वो पूरा ठीक हो जाए। अच्छा डॉक्टर साहब फिर क्या लिखते हैं, बट मे आई आस्क यू व्हाई यू आर वेस्टिंग सच ए लॉट ऑफ फोर्स व्हेन ए वर्ड कुड डू द जॉब। जब आप कह रहे हो गुरुदेव कि ये भाई साहब डिवाइन फोर्स ने काम किया था, ग्रेस तो तथास्तु कह के काम कर देती, तो आप इतना वेस्ट क्यों कर रहे हो। ये आश्रम डॉक्टर श्री अरविंद को आप अंतर कर पा रहे हो क्या इसमें, वगैरह फोर्स लगाने की जरूरत क्या थी जब तथास्तु से काम हो सकता है तो। क्योंकि आप ये कह रहे हो डिवाइन ग्रेस तो कहती तथास्तु, आपने तथास्तु काम में नहीं लिया, आपने तो फोर्स लगाई। ये कह रहा है व्हाई नॉट कट शॉर्ट आवर लेबर, क्यों तो हम डॉक्टरों की जो ये इतनी मुसीबत है उसको आप कम कर देते, और पेशेंट की डिस्कंफर्ट, और पेशेंट बेचारा तकलीफ पा रहा है भाई सेइंग तथास्तु। तथास्तु कह के, अरे श्री अरविंद और माँ के पास ही चले गए, अभी भी अगर आप भटक रहे हो तो फिर बाद में जाने से फायदा क्या हुआ। तुरंत व्यक्ति कहेगा फायदा कौन है हमारे अंदर से, इसलिए आप माँ श्री अरविंद के पास इसलिए जाते हो भी आई कैन नॉट डू अदरवाइज, नहीं तो आप जाओगे ही नहीं। ये बातें करते रहो चाहे, बहुत बुरी लगती है, बहुत ज्यादा बुरी लगती है। इसलिए ये जो उदाहरण है, ये पत्र हैं,
कितना ही पढ़ लो, हम तो रोज अब ये इसी निष्कर्ष के ऊपर, और महाश्री अरविंद नहीं कह रहे, आपको समझाया जा ही नहीं सकता। आप में स्पिरिचुअल बीइंग तैयार है तो आप जाओगे, नहीं आप जीवन भर यूं ही निकम्मे ही रहोगे, और आप यूं ही मरोगे। अब वैसी ही मौत मरोगे जैसे एक पशु मर रहा है, भाई ह्यूमन भेष में मरोगे बस, और कुछ नहीं होने वाला आपका, सड़ सड़ के मरने वाले हो। आपको कोई लाइट नहीं आने वाली है अगर स्पिरिचुअल बीइंग तैयार नहीं है। कह रहा है ये तो, इज इट एन इजीली डन, इज इट एज इजीली डन एज इट इज सेड, इफ वर्किंग ए डैम लॉट। आपने अब श्री अरबिंदो को कन्फ्रंट किया, फिर बाद में क्वेश्चन कर रहा है, क्योंकि ये कोट कर रहा है श्री अरबिंदो को, ए डैम लॉट, अरे बहुत मेहनत करनी पड़ी। तो ये कह रहा है कि इतना मेहनत करने से टेम्परेचर ओनली 1 डिग्री, खाली 1 डिग्री आपने टेम्परेचर कम किया। आप समझो ये क्या कह रहा है, और आपकी प्रकृति, ये तो कह दिया इसने, सोच नहीं रहा, ये कह रहा है श्री अरबिंदो को, एंड दैट टू फॉर 12 आवर्स और लेस, और वो 12 घंटे और उससे भी कम आपका ये चला, ये फोर्स और डैम लॉट आपने वर्क किया उसके पीछे। व्हाट एम आई टू थिंक। तो गुरुदेव क्या निष्कर्ष निकालूं मैं इस बात से, क्या कहा उसने, आप सुन रहे हो क्या? आपकी फोर्स दकियानुसी है, होक्स है, ये बकवास है। ये कह रहा है जी, मैं क्या अर्थ निकालूं, कहने का एक सभ्य तरीका हुआ कि आपने जो इतनी फोर्स लगाई, उसने 1 डिग्री टेम्परेचर कम किया, और वो भी 12 घंटे और उससे कम के लिए, तो मैं क्या मानूं? आई डिड नॉट एक्सपेक्ट यू टेक माई तथास्तु विथ सच ग्रिम सीरियसनेस। मेरे को नहीं पता था तू मेरे तथास्तु शब्द को इतना लिटरली ले लेगा। स्पीकिंग सेमी सीरियसली, मतलब पूरा सीरियसली नहीं, सेमी सीरियसली अगर मैं बोलूं, आई एम नॉट हियर टू डू मिरेकल्स टू ऑर्डर, कि मैं आदेश करूं यहां मिरेकल्स हो जाएं, बट टू ट्राई टू गेट इन ए न्यू कॉन्शियसनेस समवेयर इन द वर्ल्ड। मैं नई चेतना के लिए यहां हूं, या चमत्कार करने के लिए नहीं हूं। ये बात मां श्री अरविंद के भक्त भी नहीं मान सकते, और दूसरों की तो बात छोड़ो, वो जाते ही उसके लिए हैं। आप कह रहे हो हम भगवान को अपने मुताबिक चलाना चाहते हैं, ये बच्चा भी जानता है इस बात को, हमने कोई नई बात नहीं कही इसके अंदर, बच्चा समझता है इस चीज को। जिस दिन हमारी प्रकृति ये स्वीकार कर लेगी, मैं तो कह रहा हूं हमारी प्रकृति, तो मैं कल परसों ही कह रहा था, फेथ है तो सही क्या, विच इज इटसेल्फ हाउएवर टू अटेम्प्ट ए मिरेकल, और जो कि अपने आप में इस जगत में नई चेतना लाना भी अपने आप में बहुत बड़ा, अटेम्प्ट करना भी एक मिरेकल है। इफ फिजिकल मिरेकल्स हैपन टू टम्बल इन द प्रोसेस, अगर भौतिक चमत्कार, अब ये सेंटेंस थोड़े से देखो आपको समझने पड़ेंगे बाद में, क्योंकि ये मैं नहीं खोल सकता, आप तो दिन में पढ़ते नहीं। अपने इसको एक तो तैयारी करो, इसकी समय पे आओ, ये लाइसेंसियस जीवन को फायदा क्या हुआ फिर तो, वेल एंड गुड। अगर कोई भौतिक मिरेकल्स आ जाते हैं तो अच्छी बात है, बट यू कांट प्रेजेंट योर मेडिकल पिस्टल इन माई फेस। तेरी मेडिकल पिस्तौल मेरे चेहरे पे, मेरे कनपट्टी में लगा के, तू कह रहे हैं ना श्री अरविंद, लगा दी अगले ने तो, और ये कह भी रहे हैं अभी फोटो में अच्छा है, नहीं हम इतनी अवमानना करते उनकी, जो बात क्या है, एंड कॉल ऑन मी टू स्टैंड एंड डिलीवर। मेरी कनपट्टी के अंदर आप पिस्तौल लगाओ और मेरे से ये कहो चलो स्टैंड एंड डिलीवर, खड़े हो, और जो कह रहे हैं उस चीज को भुगताओ। एज फॉर द फोर्स, एप्लीकेशन ऑफ माई फोर्स शॉर्ट ऑफ द सुप्रामेंटल मीन्स ऑलवेज ए स्ट्रगल। यदि सुप्रामेंटल नहीं है तो हमेशा ही अलग अलग फोर्सेस है, उसके बीच के अंदर संघर्ष रहता है। और सक्सेस किस किस चीज पे डिपेंड करेगी, मेरी फोर्स लगाने पे सक्सेस किस चीज पे निर्भर करती है, स्ट्रेंथ एंड परसिस्टेंसी ऑफ द फोर्स पुट आउट। यही चीज यहां शिक्षा में है। आपने तो ये कर लिया, ये नहीं हुआ, अरे श्री अरविंद लगा रहे हैं तो नहीं हो रहा, क्योंकि सफलता किस पे निर्भर करेगी, एक स्ट्रेंथ एंड परसिस्टेंसी ऑफ द फोर्स पुट आउट। आपने जो फोर्स लगाई उसमें कितनी शक्ति है और कितनी निरंतरता से लगाई, एक। दूसरी, रिसेप्टिविटी ऑफ द सब्जेक्ट, ग्रहणशीलता। इसीलिए मैं कह रहा हूं 5 मिनट पहले नहीं आओगे तो ग्रहणशीलता अंदर विषय में जाने की ही नहीं होगी।
वो देवियां आपको स्वीकार ही नहीं करेंगी भाई। आप पहले आके पूरा तैयार बैठो उस सारी चीज के लिए। तो हम जो हैं इस ग्रुप वाले, वो आप वही उसी जगह से आप जो पहले दिन शुरू किया वहीं अपने को रोज रोज बताने की कोशिश करो, हम वहां नहीं है। तो ये आप ये समझो ये क्या कह रहे हैं, रिसेप्टिविटी है या नहीं है। क्या कर लो आप, कर रहा हूं ना मैं रोज। इतने सेशंस तो हमारे ये दमदर के हो गए। मैं कह रहा हूं इतने ही और कर दो, इसके 2 जीरो और लगा दो चाहे। क्या लगता है इसी तरीके से चलते रहो, मेरे को तो नहीं लगता एक इतना हर्फ भी फर्क पड़ सकता है क्या। तीसरे, द सैंक्शन ऑफ द अनमेंशनेबल, जिसकी चर्चा नहीं करी जा सकती, इसको आप भाग्य कह देते हो, मनुष्य तो भाग्य कह देता है। पर अनमेंशनेबल, भगवान परात्पर, कोई ऐसी चीज जिसको मेंशन नहीं किया जा सकता, यदि उसका सैंक्शन नहीं है तो कितनी भी तो फोर्स लगा दो और कितना ही सब्जेक्ट आपका रिसेप्टिव, वो काम नहीं होगा। पहला हो दूसरा हो, पहला हो और दूसरा नहीं हो तो भी काम नहीं चलेगा। पहला दूसरा दोनों हो, तीसरा नहीं हो तो दोनों काम नहीं करेंगे। करेंगे तो एक लिमिटेड ही करेंगे। आई बेग योर पार्डन, आई मेंट दी अननेमेबल। तुरंत श्री अरविंदो ने अपने आप को मेंशनेबल का मतलब अननेमेबल, इनइफेबल जिसको वर्णनातीत है, अननोएबल जिसको जाना नहीं जा सकता। एक्सिस फिजिकल कॉन्शियसनेस इज रादर ऑब्स्टिनेट, जिसके ऊपर मैंने लगाई थी ये 1 डिग्री जिसका कम हुआ, उसका जो फिजिकल कॉन्शियसनेस है वो बहुत ज्यादा ऑब्स्टिनेट है, जिद्दी है, एज यू हैव नोटिस्ड, जैसे आपने देखा। एंड देयरफॉर नॉट टू रिसेप्टिव, वो रिसेप्टिव ही नहीं है। इट मे फील द मदर इनसाइड इट, बट टू ओबे हर विल और फोर्स इज लेस हैबिचुअल फॉर इट। वो अंदर तो महसूस करती है या करता है, इसको आप सरेंडर का नाम दे देते हो, पर उसकी जो इच्छा है, माँ का जो संकल्प है उसको ओबे करना या उसकी फोर्स को ओबे करना, उसके लिए लेस हैबिचुअल है। देविका जी, ये गंभीरता लग रही है क्या इस बात की। भीतर जो आप कहते हो, बाहरी जो हाँ जी। आपकी कोई उसकी कोई, देख रहे हो ना इसमें कि बहुत पॉइंट्स हैं इसमें। अब ये तो और भी चर्चाएं इसमें है, मैं और पढ़ देता हूं थोड़ा सा 2 मिनट। इसमें क्या इंप्रेशन आ रहा है अभी, अभी जो है वो, ये जो अपन ने पढ़ा, अब आपको कोई सेंस क्यों विवेक, ये सेंस ओमनीपोट, मैं क्यों कह रहा था भयंकर बात है ये। आप उस सिनेरियो को महसूस करो जब डायरेक्टली आप श्री अरविंदो को चिट्ठी लिख पा रहे हो और श्री अरविंद ने अपनी फोर्स उस व्यक्ति के ऊपर लगाई। इसने तो कह दिया, पर क्या मन में ये नहीं आएगी कि आप आपस में कानाफूसी नहीं करोगे। आप और कोई दूसरा व्यक्ति बैठा हो, वही कानाफूसी जो यहाँ बैठ के मेरे बारे में करी जाती है, जो लोग रोज इसमें आ रहे हैं वो कर रहे हैं ना कानाफूसी। कह तो रहा है शिक्षा के बारे में, पर अब तो इसको तो क्या सेंस, जब इसको माँ समझाएगी उसी दिन ये समझ में आएगा इसको। तो हम भी ये कह रहे हैं कि माता जी श्री अरविंद को समझाएंगी। अब उनमें तो कहने का भी चांस नहीं था। कह तो रहे हैं, लोग कह रहे हैं भी हमको पता है शिक्षा का, जीवन कैसे जीना उसका, उसके साथ माँ की क्रिया हो ही रही होगी, ये सारी बातें कह तो रहे हैं और क्या कहेंगे। श्री अरविंद ने कह दिया तुमने तो मेरी कनपट्टी पे पिस्तौल लगा के और ये कह रहे हो कि चलो खड़े हो डिलीवर करो। कह तो दिया, शब्दों में तो कह दिया यार, और क्या कहेंगे फिर। ये भक्त की बात है, और जो भक्त नहीं है वो तो दायरे में ही नहीं है। अब इसका क्या अर्थ निकलता है, कुछ सेंस आता है इसका देविका जी। ये हमारी भौतिक प्रकृति की समस्या है। ये कह के कि आप डिमांड करो भगवान से कि मुताबिक चले, ये मुताबिक शब्द से चलती नहीं, आपको लिविंग इसका सेंस होना चाहिए। अब ये देखो तुरंत के अंदर ये उदाहरण जो आया, और उदाहरण मैं दे सकता हूं, मतलब कोई भी चीज के उदाहरण मां श्री अरविंद के शब्दों से। अभी तो और है ये पूरा सेक्शन है, लेटर्स का पूरा सेक्शन है। सारे ही लेटर्स पढ़ लो चाहे उस तरीके से। आभास आता है क्या आपको कुछ इसका। हाँ जी। और ये प्रकृति आपको कैसे धोखा दे रही है, देख लो आप। जो इंप्रेशंस आपके हैं उनको कहाँ रखते हो, आप विश्वास कर सकते हो क्या उसके ऊपर। अब अपन अपने आप को कहाँ पाते हैं वास्तव रूप में।
ये हाँ सारी जी। चर्चा इसकी लाइट में एनालिसिस करने वाली बात है बड़े। ये तो जस्ट आपने थोड़ा सा दिया, बट इसको तो और गहराई में खुद को समझने की जरूरत है कि हम लोग ये कहाँ कहाँ पे करते हैं ऐसे। नहीं, ठीक है। एटीट्यूड थोड़ा चेंज करना चाहिए। ये करना चाहिए कि हम धोखेबाजी तो कर ही रहे हैं, निश्चित रूप से। ये नहीं कहाँ कहाँ कर रहे हैं, वो तो कर ही रहे हैं। उसके प्रति थोड़ा सचेतन हो जाएं। ये न अविश्वास करो कि कहीं कोई आपके गड़बड़ी है क्या, ये तो पक्की तय मानो कि गड़बड़ी तो है, थोड़ी सी पता चल जाए। ये मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मतलब हाँ मेरी जी। बात कर रहा हूं, क्योंकि ये तो साधना की क्योंकि प्रक्रिया, ये पहले ही अगर मान बैठे कि नहीं हमारे तो कोई गड़बड़ी नहीं, तब तो फिर कोई आधार ही नहीं। मैं ये कह रहा हूं, वो व्यक्ति साधना कर ली उसने, वो वहां आ गया, मां श्री अरविंद को गुरु मान लिया, जो मान लिया, गुरु साक्षात परम ब्रह्म। वो गुरु पूर्णिमा भी मनाता होगा, हमारे तो है श्री मां अरविंद, हमें किस बात की चिंता। हमें ये नहीं, हमारा जीवन मरण माँ का है, हमारा कतरा कतरा खून माँ का है, हमारा ये है, हमारा वो है। राधा की प्रार्थना और पता नहीं कौन कौन सी प्रार्थना, ये सारी चीजें आ गई। ये लो साहब, ये रियलिटी चेक हो गया प्रकृति का। इसकी गंभीरता आप समझो। व्यक्ति ये कह रहा है आपके इतना फोर्स लगाने से 1 डिग्री कम किया, ये तो हंसने से भी बुरी बात है वैसे। आप किसी की इससे ज्यादा उपहास क्या कर सकते हो। श्री अरविंद को कह रहा पूरी रात आपने इतनी फोर्स लगाई, 1 डिग्री टेम्परेचर कम किया उसका, तो इससे मैं क्या मानूं। आप समझ रहे हो उसने क्या कह दिया। हाँ जी। तो फिर अब जैसे कोई पर्सन है, वो मान लो ठीक नहीं हुआ और वो माँ का है, डिवोटी है, तो माइंड में ये तो आता रहे वो माँ की इतनी पूजा करता था, कमाल है, ठीक ही नहीं हुआ वो। या उसकी डेथ हो गई, बड़ी यंग एज में डेथ हो गई पर्सन की, एक्सीडेंट से होगी, माँ का डिवोटी था। तो ये चीजें तो कई बार आई ही है माइंड में कि भाई अरे ये तो इतनी इतनी जल्दी इस उम्र के अंदर ये चला गया। वो तो बहुत ही माँ को प्रेयर करता था। तो अब ये सोच के बैठे कि हाँ जो माँ के जो है, अब ये लॉजिकल है, बट स्टिल मन में ये बात आ जाती है कि हाँ माँ के डिवोटी है तो बहुत अच्छी हेल्थ होगी, बहुत अच्छा सब होगा, लाइफ बहुत लॉन्ग होगी। हाँ, पर ये मैं तो ये कह रहा हूं कि ये कह रहे हैं, ये क्रूड सरफेस नोशन है, ओमनिसियंस, सर्वज्ञ है। एक और माँ को आप कहते हो सब जानती हैं, और दूसरी ओर आप ये कहते हैं वो सर्वज्ञ नहीं है, अगर हैं तो उसको डिटेल्स का पता नहीं। आपका भौतिक मन इन दोनों चीजों को कैसे तालमेल बिठाएगा। अपनी सुविधाजनक तरीके से ही बिठाएगा, उसको बेचारे को पता तो है नहीं। इसके बारे में थोड़ा विचार करना। अब आप पहली बार इसकी गंभीरता समझ रहे हो, मैंने जो कल कहा था, अब कुछ फिर से सोचना इस बारे में। अब लाइफ डिवाइन पे आते हैं।